بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ سیریا میں علوی مزار کو آگ لگا دی گئی، کئی شہروں میں احتجاج، جھڑپیں، 14 پولیس آفیسرز ہلاک۔ سیریا کی نئی حکومت نے طرطوس میں سیکیورٹی آپریشن شروع کیا، کہا بشار حکومت کے بچے کچے وفاداروں کو ختم کریں گے۔ غزہ میں 38 فلسطینی جاں بحق، 5 جرنلسٹ شامل، سینٹرل غزہ میں اسرائیل کا ریزرو سپاہی مرا۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا حوثی حملوں نے سیریا پر اسرائیل کی خوشی ماند کر دی، مزاحمتی تنظیمیں آزاد ہیں۔ حوثی حملوں کو روکنے کے لیے ایران پر حملہ کر دیا جائے، موساد چیف کا مشورہ، نتن یاہو نے کیا اختلاف۔ لبنان میں دراندازی کے لیے اسرائیل کی کوششیں، بیروت نے سیز فائر سمجھوتے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان کی فوجی عدالت نے 9 کیس میں مزید 60 لوگوں کو دی سزائیں، عمران خان کا بھانجا بھی شامل۔ آذربائیجان کے ہوائی جہاز کو رشیا نے حادثاتی طور پر مار گرایا، میڈیا رپورٹس میں دعویٰ۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی مضبوط شروعات، پہلے دن 6 وکٹ پر 311۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سیریا میں ایک علوی مذہبی مقام پر حملے اور اسے آگ لگا دینے کے بعد تناؤ پیدا ہو گیا ہے اور علوی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ بعض جگہ جھڑپیں بھی ہوئی، ان جھڑپوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ صورتحال ابھی پیچیدہ ہے۔ ایسے میں سیریا کی نئی حکومت کے نئے فوجی ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا کہ وہ طرطوس صوبے میں سیکیورٹی آپریشن کر رہا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد علاقے کی سیکیورٹی برقرار رکھنا اور بشار حکومت کے بچے کچے وفاداروں کو ختم کرنا بتایا گیا ہے۔ اس طرح کے لوگ اب بھی اس علاقے میں ایکٹیو ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس آپریشن نے شروعاتی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سیریا کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ 4 شنبے کو جھڑپیں شروع ہوئیں اور کئی لوگ ہلاک ہوئے، کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ بشار حکومت کی وفادار فورسز کے ایک حملے میں 14 پولیس عہدیدار ہلاک ہو گئے۔ علوی طبقے کے ایک مقدس مقام پر حملے کا ویڈیو وائرل ہوا، جس کے بعد احتجاج شروع ہوا۔ اس واقعے کے بعد کرفیو لگا دیا گیا۔ کرفیو کے دوران یہ حملہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محمد عبدالرحمن نے بتایا کہ طرطوس میں بشار حکومت کے وفاداروں کی طرف سے کیے گئے حملے میں 10 پولیس والے زخمی بھی ہوئے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جو بھی سیریا کی سیکیورٹی یا شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی جرات کرے گا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے ٹیلی گرام چینل پر بتایا کہ جو بھی ایسے ویڈیوز کو پھیلانے کی کوشش کرے گا اسے ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ مسلک کی تشدد پھیلانا چاہتا ہے۔ حساس علاقوں میں فوج و پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ سال 2000 سے حکومت کرنے والے بشار الاسد کا حال ہی میں تختہ الٹ دیا گیا تھا اور وہ رشیا فرار ہو گئے تھے۔ اس دوران منبج ٹاؤن سے بھی جھڑپوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ وہاں پر صورتحال نازک ہے، لیکن ابھی تصویر صاف نہیں ہے۔ اس علاقے میں تقریباً 1 دہے سے کرد فائٹرز کا کنٹرول ہے، جنہیں امریکہ کی مدد حاصل ہے۔
सीरिया के हमा में हाल ही में क्रिसमस ट्री को आग लगाने के बाद ईसाइयों ने कई शहरों में एहतजाज किया था। खबरों में कहा गया कि सीरिया के कई शहरों में लोग सड़कों पर हैं और अलवी मजहबी मकाम की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि बशार हुकूमत का तख्ता उलटने वाले सबसे असल और अहम ग्रुप HTS के मिलिटेंट्स ने एहतजाजियों पर फायरिंग की। लताकिया, तरतुस, होम्स, हमा और दूसरे शहरों में एहतजाज हो रहा है। इससे पहले एलेपो में शेख अबू अब्दुल्ला अल हुसैन अल कासी के मज़ार के अंदर आग लगा दी गई और हथियारों से लैस लोगों ने मज़ार के अंदर गार्ड्स को हलाक कर दिया। ये मकाम अलवी तबके के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। जब से बशार हुकूमत का तख्ता उल्टा है, सीरिया में माइनॉरिटी ग्रुप्स अपनी सिक्योरिटी और मुस्तकबिल के ताल्लुक से तशवीश का शिकार हैं। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि तरतूस सूबे में होने वाली झड़पों में कम से कम 17 लोग हलाक हुए। बात करते हैं गाजा की। गाजा में पिछले 24 घंटों में इसराइल के हमलों में 38 फ़लस्तीनी हलाक हो गए और 137 ज़ख्मी हुए। गाजा की वजारत सेहत ने यह बात बताई। इस दौरान हमास ने कहा है कि इसराइल जंगबंदी बातचीत में नई नई शर्तें लगा रहा है, जिसकी वजह से समझौते में देर हो रही है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने फ़लस्तीनी ग्रुप पर रुकावटें खड़ी करने का इल्ज़ाम लगाया। इसराइली फ़ौज ने गाजा में 5 जर्नलिस्टों को हलाक कर दिया और फ़ौज ने नुसैरात में अलौदा हॉस्पिटल के करीब मीडिया की गाड़ी पर बमबारी की, जिससे 5 जर्नलिस्ट हलाक हुए। अल-कुद्स टीवी चैनल ने बताया कि इसराइली फौज ने यह कार्रवाई की है और ये एक सोचा समझा कत्लेआम है। चैनल ने दुनिया के मीडिया इदारों और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो इस वहशियाना हमले के खिलाफ आवाज़ उठाएं और मुजरिमों को कठघरे में खड़ा करें। चैनल ने कहा कि इस कत्लेआम के बावजूद मुज़ाहमती मीडिया अपना काम जारी रखेगा। इसराइली फौज ने दूसरे इलाकों में भी हमले किए। डॉक्टर्स के हवाले से कहा गया कि जुमेरात की सुबह इसराइली हमलों में कम से कम 10 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। जैतून इलाके में किए गए हमले में 5 लोग हलाक हुए और 20 ज़ख्मी हुए। गाजा सिटी के सबरा इलाके में 5 लाशें मिली। सेंट्रल गाजा में लड़ाई के दौरान एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। इस सिपाही की पहचान कर दी गई है। इसके साथ ही ज़मीनी ऑपरेशन में मरने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 392 हो गई है। इसराइली मीडिया में फ़ौज के हवाले से कहा गया कि रिज़र्व सिपाही एमिट लेवी हलाक हुआ। खबरों में कहा गया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने राय दी है कि यमन के हुसियों की तरफ से इसराइल पर हमलों का जवाब देने के लिए ईरान पर हमला कर देना चाहिए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मशवरे से इख्तलाफ किया। मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने इसराइल में हुसियों के मुसलसल हमलों के पस मंज़र में ये तजवीज़ पेश की, लेकिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा इसराइल काटस का कहना है कि हुसी हमलों के जवाब में यमन में हुसियों पर हमले करना चाहिए। मालूम हुआ कि मोसाद चीफ ने सिक्योरिटी दारों से खिताब करते हुए कहा कि हमें ईरान से आमने सामने की टक्कर लेनी चाहिए। अगर हम सिर्फ हुसियों पर हमला करेंगे तो ये यकीनी नहीं है कि हम उन्हें रोक पाएंगे। इसराइल के चैनल 13 ने कहा कि नेतन्याहू ने मोसाद चीफ के ख्याल से इत्तफाक नहीं किया। उनका कहना है कि ईरान एक अलग मसला है और इससे मुनासिब वक्त पर निपटा जाएगा। पिछले 10 दिनों में हुसियों ने इसराइल में कम से कम 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 5 ड्रोन हमले किए हैं। हुसी हमलों के मसले पर नेतन्याहू के दफ्तर के मुलाजमीन ने मोमबत्तियों के साथ एक मार्च निकाला। नेतन्याहू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुसियों का वही हशर होगा जो इसराइल के दूसरे दुश्मनों का हो रहा है। हुसियों ने पिछले 1 साल में इसराइल में 200 से ज़्यादा मिसाइल्स और 170 से ज़्यादा ड्रोन्स हमले किए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि यमनियों के हमलों की वजह से इसराइल के अंदाज़े गलत साबित हुए हैं और सीरिया के बारे में इसराइलियों की खुशी पर ओस पड़ गई है। IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईमी ने कहा कि यमन के अंसारुल्लाह तहरीक ने अपने हमलों के जरिए साबित कर दिया कि मुजाहमत का महाज अपने पैरों पर खड़ा है, वो आज़ाद है। और उन्होंने कहा कि आलमी मीडिया मुजाहमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने कहा है कि गाजा में इसराइली बर्बरियत और गाजा की नाकाबंदी रुकने तक वो इसराइल में हमले करते रहेंगे। इसराइली फौज लेबनान में दरअंदाजी की कोशिश कर रही है। मीडिया की खबरों में ये बात कही गई। लेबनान के ओहदेदारों ने बताया कि इसराइल जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशों पर तनकीद की। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले की शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने 9 में हमलों के सिलसिले में और 60 लोगों को सजाएं सुनाई हैं। इनमें इमरान खान का भांजा हसन नियाजी भी शामिल है। फौज के तर्जुमान ने यह बात बताई। 9 में वाक़यात के सिलसिले में कई लोगों के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल रहा है। 21 दिसंबर को 25 सिविलियंस को 2 से 10 साल जेल की सजाएं सुनाई गई थी। इमरान खान के हामियों ने पिछले साल 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसके दौरान झड़पें हुई थीं।
इन झड़पों के दौरान रावलपिंडी में फौजी हेडक्वार्टर और दूसरे फौजी मकामात पर भी हमले किए गए थे। जिन लोगों को सजाएं दी गई उनमें तहरीक इंसाफ के लीडर भी शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि तमाम मुलजिमीन को फौजी अदालत ने तमाम सबूतों की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। फौज ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तानी कौम, हुकूमत, फौजों, इंसाफ और रियासत की हिफाजत के अपने इरादों में मजबूत है। ऐसे इशारे मिले हैं कि दूसरे सीनियर पीटीआई लीडर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिनमें खुद इमरान खान भी शामिल हो सकते हैं। इमरान खान के भांजे को 10 साल कैद बमशक्कत की सजा सुनाई गई। 2 रिटायर्ड फौजी ओहदेदारों को भी सजाएं दी गई। इमरान खान को मई 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। उसी एहतजाज के दौरान फौज के मकामात पर हमले किए गए थे, जिनमें GHQ पर हमला भी शामिल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान में इन सज़ाओं पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। अमेरिका ने कहा है कि उसे सज़ाओं पर तशवीश है। बरतानिया ने कहा कि सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमों से पता चलता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने भी सज़ाओं पर तनकीद की है और कहा है कि ये सियासी और शहरी आज़ादी और हुकूक़ के बारे में पाकिस्तान के वादों की खिलाफ वर्जी है जो उसने दुनिया से किए हैं। फौज और हुकूमत ने इन खबरों को गलत बताया है कि जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। खबरों में दावे किए जा रहे हैं कि अजरबैजान के हवाई जहाज को एक दिन पहले रशिया ने हादसाती तौर पर मार गिराया होगा। एक दिन पहले अजरबैजान एयरलाइंस का हवाई जहाज काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया था। इस हादसे में 38 लोग हलाक हुए और 29 महफूज रहे। ये जहाज अजरबैजान के शहर बाकू से रशिया के ग्रूजनी जा रहा था। इस जहाज पर 67 लोग सवार थे, जिनमें 62 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। इस क्रैश की तहकीकात जारी है। शुरुआती तहकीकात के हवाले से मीडिया में दावा किया गया कि जहाज को रशिया ने मार गिराया है। यह जहाज उस इलाके में उड़ान भर रहा था जहां यूक्रेन की ड्रोन सरगर्मियां होती रही हैं। रशिया की तरफ से सरकारी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बंद मंदिर के मकाम पर बरामद होने वाले पुराने कुएं के पास खुदाई जारी है। मकामी लोगों ने बताया कि कई साल पहले इस कुएं को छोड़ दिया गया था, उसमें कचरा भर गया था, अब उसे साफ किया जाएगा। ये मंदिर कई बरसों से बंद था। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पहले दिन 6 विकेट पर 311 रन बना लिए। 5 मैचों की इस सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 19 साला टिम कॉन्स्टेंस ने पहला मैच खेलते हुए हाफ सेंचुरी बनाई। इसके अलावा 3 दूसरे खिलाड़ियों ने भी 50 स्कोर की। उस्मान ख्वाजा ने 57, स्मिथ ने 68 नॉट आउट और लुइस चैंश ने 72 रन बनाए। नए खिलाड़ी ने 60 रन बनाए। इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। ये मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। सीरिया में अलवी मज़ार को आग लगा दी गई। कई शहरों में एहतजाज, झड़पें, 14 पुलिस ऑफिसर्स हलाक। सीरिया की नई हुकूमत ने तरतूस में सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया। कहा बशार हुकूमत के बचे कुछ वफादारों को खत्म करेंगे। गाजा में 38 फलस्तीनी जान बहक, 5 जर्नलिस्ट शामिल। सेंट्रल गाजा में इसराइल का रिजर्व सिपाही मरा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा हुसी हमलों ने सीरिया पर इसराइल की खुशीमांद कर दी। मुजाहिमती तंजीमें आजाद हैं। हुसी हमलों को रोकने के लिए ईरान पर हमला कर दिया जाए। मोसाद चीफ का मशवरा, नेतन्याहू ने किया इख्तिलाफ। लबनान में दरअंदाजी के लिए इसराइल की कोशिशें, बेरूत ने सीजफायर समझौते की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान की फौजी अदालत ने 9 केस में मजीद 60 लोगों को दी सजाएं। इमरान खान का भांजा भी शामिल।
آذربائیجان کے ہوائی جہاز کو رشیا نے حادثاتی طور پر مار گرایا، میڈیا رپورٹس میں دعویٰ۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی مضبوط شروعات، پہلے دن 6 وکٹ پر 311۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ فریجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔